एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा फेवर करता है and nonetheless its value is as same as the other law entrance examinations of the country, which is CLAT, AILET, SLAT. And that is where you guessed it right that I am talking about the MHCET law entrance examination of the country. इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 90% जो सीट्स हैं, 90% का कोटा, yes, I am talking about the 90%, almost the whole reserved seats are for Maharashtrian candidates. So yes, today in this video we are going to discuss that how MHCET differs from other law entrance examinations, कि आप कंपेयर कैसे करोगे कि क्या आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप क्लैट, एलेट, स्लैट, CULLE, LSAT इंडिया और LNAT के साथ इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, मार्किंग डिफरेंस क्या है, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द MHCET एग्जामिनेशन सो दैट यू नो कि आपको कंपैरिजन के बेसिस पे कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड हाउ यू शुड मूव अहेड विद द प्रिपरेशन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. अगर आपको कोई भी और डाउट्स होते हैं ड्यूरिंग द वीडियो इन द MHCET एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर अ महाराष्ट्रन कैंडिडेट, तो आपको 100% इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, तो आप हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. टिल देन लेट्स सी हाउ MHCET differs from the other law entrance examinations of the country. MHCET is a state level speed and volume entrance focused on admitting students to the Maharashtra law colleges with a simpler high attempt strategy because there is no negative marking. So the first very benefit of this one particular examination is that it has no negative marking. No negative marking means that it tests your attempts, that how well do you know the concepts without judging you that what are you doing wrong, right? So the first best benefit of this examination is that there is no negative marking. It is checking your high attempt strategy कि आप कितने questions को कितने time में attempt करते हो. The other exams, CLAT, AILET, SLAT, CULLE, LSAT India, LNAT are national, international in scope and differ widely in format, difficulty, negative marking, policy and selection procedures. So your prep must change depending on which tests you target, right? तो आपको पता है CLAT, AILET, SLAT ये जो सारे entrance examinations हैं ये national और international level examinations हैं and that is where MHCET is a state level examination. और इन सारे entrance examinations की जो preparation है, strategy है, वो differ करती है because of the fact कि ये सारे जो entrance examinations हैं इनमें सिर्फ एक written test नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग stages भी होते हैं जो हम इस वीडियो में आपको आगे दिखाने वाले हैं, that how your preparation should differ from the other law entrance examinations if you are targeting MHCET, right? So MHCET, MAHLLB that means MHCET आपका होता है 5 ईयर के लिए और ये महा LLB सेट जो होता है ये आपका होता है 3 ईयर लॉ के लिए. सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आप 5 ईयर लॉ को टारगेट कर रहे हो तो आपको MHCET का फॉर्म फिल करना है और अगर आप MAHLLB CET टारगेट कर रहे हो तो आपको 3 ईयर LLB के लिए फॉर्म फिल करना है अगर आप 3 ईयर LLB करना चाहते हो तो. स्टेट कॉमन एंट्रेंस रन बाय द महाराष्ट्र सेट सेल यूज्ड फॉर एडमिशंस टू डजन्स ऑफ लॉ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, both 3 year and 5 year LLB seats, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों हैं. It is primarily a state admissions tool, so its seats feed into state colleges and centralized counseling, CAP, right? तो आप ये देखोगे कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 90% जो रिजर्वेशन है वो महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स के लिए है. ओनली 10% seats are for outside महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, OMS स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 10% सीट्स हैं. सो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड नो कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आपको गारंटी है कि आप इस 10% में फॉल कर सकते हो तभी आपको इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए बिकॉज 90% प्रेफरेंस इज गिवन टू द महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स एंड दैट इज वाई इट इज अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन दैट दे हैव मेड अपॉन, राइट? क्लैट आपको पता है इट्स अ नेशनल कंसोर्शियम एग्जाम फॉर एडमिशन इनटू द NLUs. जो क्लैट रैंकिंग के बेस पे आपका एडमिशन होता है 24 NLUs में आपको एडमिशन मिलता है. AILET सिंगल विंडो टेस्ट रन बाय NLU दिल्ली फॉर एडमिशन टू ओनली NLU दिल्ली. NLU दिल्ली के लिए सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट विच इज AILET और AILET भी सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट जो एक ही यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है विच इज NLU दिल्ली, राइट?
Now, SLAT, Symbiosis Entrance for its law program, right? Symbiosis की जितनी ब्रांचेस हैं उसके लिए SLAT एक्सेप्ट होता है. CULLE और CULET ये आपका होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए. क्राइस्ट owns entrance and selection sequence, exam and micro presentation PI for Christ campuses, not a national shared gateway like CLAT. ये एक national gateway CLAT examination की तरह नहीं है. LSAT India, LSAT India accepted by many private law colleges. LNAT is a UK admissions test, essay plus critical reading used by Oxford, UCL and other UK and European law programs. But ये जो LNET एग्जामिनेशन है ये अब धीरे धीरे इंडिया में भी अडॉप्ट हो रहा है, जैसे कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी अब LSAT इंडिया को एक्सेप्ट ना करके LNET UK एग्जाम प्रेफर कर रही है टू गेट एडमिशंस इनटू द 5-year and 3-year LLB प्रोग्राम इन इट्स यूनिवर्सिटी, राइट. अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न और टाइमिंग देख लेते हैं कि सारे एग्जाम्स की क्या रहती है. MHCT 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स. यस, नाउ द कैच इज हियर. पहले आपके साथ क्या होता था कि MHCT में आपके पूछे जाते थे 150 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन 120 मिनट्स, बट नाउ दिस क्राइटेरिया हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ देयर आर नो 150 क्वेश्चंस, देयर आर ओनली 120 क्वेश्चंस दैट आर टू बी आंसर्ड इन 120 मिनट्स. सेम लाइक क्लैट की आपको क्लैट में भी 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. रीसेंट रिविजन रिड्यूस्ड क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग, लैंग्वेज ऑप्शन ऑफन इंक्लूड्स इंग्लिश एंड मराठी. अब आपके पास MHCT में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास लैंग्वेज ऑप्शन है, आप दोनों लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हो, इंग्लिश एंड मराठी. इंग्लिश एंड मराठी ये आपको किसी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं मिलने वाला है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट दे हैव गिवन मराठी एज एन ऑप्शन, अगेन बिकॉज इट इज अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन एंड दे वांट टू फोकस ऑन द स्टूडेंट्स हु आर द महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स, एंड महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स यूजुअली नो मराठी मोर एंड दैट इज व्हाई दे हैव केप्ट मराठी एज एन option for the language if you want to appear for the paper. This is a pure MCQ speed test where attempting more pays, right? यहाँ पे क्या होता है कि आप नेगेटिव मार्किंग की वजह से ज्यादा अटेम्प्ट्स कर सकते हो एंड दैट इज व्हाई इट इज अ हेवी अटेम्प्ट पेपर, राइट. Now, CLAT UG, again 120 MCQs in 120 minutes, 0.25 negative marking per wrong answer. Passage-based sections across 5 areas, legal, GK, LR, English, cons, greater emphasis on comprehension प्लस पेनलाइज्ड गेसिंग, राइट. यहाँ पे क्लैट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, प्लस ये एक बहुत हैवी रीडिंग बेस्ड पेपर है. आपके पांचों सेक्शंस जो होते हैं वो पैसेज बेस्ड फॉर्मेट में होते हैं. ALET में अराउंड 150 MCQs in 120 minutes that you need to solve. फॉर्मेट वेरीज बाय ईयर बट हिस्टोरिकली 150 मार्क्स अब कांस्टेंट रह रहा है, 150 मार्क्स होते हैं आपके. नेगेटिव मार्किंग 0.25, 3 सेक्शंस कॉमनली, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स जीके. अब आपका यहाँ पर जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है वो 70 मार्क्स का होता है एंड स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज होते हैं कि क्या लीगल और कॉन्स हमसे नहीं पूछा जाता है. दैट इज वेयर ALET कंफ्यूजेज यू. लॉजिकल के सेक्शन में ही आपसे जो लीगल और मैथ्स का सेक्शन है वो पूछ लिया जाता है. तो द सिलेबस फॉर ऑल दीज 3 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम. कोई डिफरेंस नहीं है सिलेबस में, बस क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का थोड़ा सा फर्क आता है. क्लैट में पूछी जाती है क्रिटिकल रीजनिंग और जबकि ALET और MHCT में ज्यादा एम्फेसिस एनालिटिकल रीजनिंग को है, बट थोड़े थोड़े क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के इन दोनों एग्जामिनेशंस में भी पूछ लिए जाते हैं, राइट. It's shorter section wise but penalizes wrong guesses. Check NLUD notices for exact your pattern, right? Then SLAT if we talk about, then 60 MCQs in 60 minutes, one of the easiest entrance examinations if we talk about because of the reason that it is a private university that they are targeting. No negative marking, 5 short sections, logical, legal, analytical, reading, GK, again the same syllabus but 12 questions per section fixed. आपके हर सेक्शन से 12 ही क्वेश्चंस आएंगे. दैट मीन्स इक्वल वेटेज टू ऑल द sections, equal weightage to all the sections, high intensity due to tight टाइम, राइट. 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इसीलिए थोड़ा सा इंटेंसिफाइड हो जाता है ये पर्टिकुलर एग्जाम. देन इफ यू टॉक अबाउट CULLE, जनरली रिपोर्टेड एज 120 MCQs, वेरीज ईयर बाय ईयर क्योंकि इंस्टीट्यूशन कभी कभी चेंजेस लाता रहता है. ऑफन फॉलोज अप द टेस्ट विद माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड स्किल असेसमेंट PI. अब इसमें अभी तक हमने जो यहाँ तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखे उनमें सिर्फ एक रिटन टेस्ट हो रहा है, बट CULLE में आपका एक माइक्रो प्रेजेंटेशन, स्किल असेसमेंट, पर्सनल इंटरव्यू, बहुत सारे राउंड्स होते हैं
to get into the Christ University. And that is where if you want to show your personality, अगर आप अपनी personality basis पे किसी university में admission लेना चाहते हो, then CULLE, that means the Christ University is the best option for you, right? LSAT India, about 92 questions in 140 minutes, remote proctored, no negative marking, focused on logical and analytical reasoning, score is scaled, right? ये वाला एग्जामिनेशन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने लेना बंद कर दिया है बिकॉज इट वॉज बिट ऑन अ टफर साइड. एंड जो ये एलसेट इंडिया है ये यूजुअली ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, बट नाउ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हैज ऑल्सो refused to take this one particular entrance examination for their admissions, and it has shifted to LNAT UK. Two-part section A, 42 MCQs that has to be solved in 95 minutes. That means you get almost 2 minutes per question to solve, double the time of other entrance examinations. Section B, 1 essay, 40 minutes. Then that is where you have to give an objective बेस्ड टेस्ट ऑल्सो, कि आप सिर्फ MCQ बेस्ड पे एडमिशन नहीं ले सकते, आपको एक ऐसे भी लिखना होगा विद इन 40 मिनट्स ऑन द करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक जो वो आपको दे देंगे. इट टेस्ट क्रिटिकल रीडिंग एंड एसे स्किल्स रादर देन स्टैंडर्ड MCQ लॉजिक, राइट? Then if we talk about the marking logic and the tactical impact on preparation, कि आपको किस तरीके से दिमाग में ये फ्रेम आउट करना चाहिए कि कौन से एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जो मैं 100% टारगेट कर सकता हूं बेस्ड ऑन द रीजन दैट कि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज MHCT, SLAT एंड LSAT इंडिया, दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इन एग्जाम्स को आप 100% एज अ बैकअप ऑप्शन अपना रख सकते हो. वाई आई एम सेइंग एज बैकअप ऑप्शन? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. अगर आप इनमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको कॉलेजेस भी अच्छे मिलते हैं. इन केस अगर आपका क्लैट और एलेट एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाता है, अच्छे डिसेंट कॉलेजेस आपको मिलते हैं स्लैट और MHCT के थ्रू, एंड दैट इज वेयर आप फर्स्ट एलिमिनेशन पास यूज करके एक्यूरेसी को आगे बढ़ाकर अपने हेवी अटेम्प्ट्स कर सकते हो. बिकॉज आपको आपके माइंड में यू डोंट हैव टू टेक अटेंशन दैट देयर इज नेगेटिव मार्किंग. यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इफ यू हैव द time. But still, if we talk about the negative marking examinations, there are CLAT, ALET and CULLE versions. इसमें क्या होता है, आपकी negative marking होती है, and that is where you cannot afford the guessing thing that you can do for the other entrance examinations, because if you guess and it is wrong, then you will be penalized, and then there will be 0.25 negative marking, which you cannot afford in these examinations, which is CLAT and ALET, because आपको बहुत accuracy के साथ, speed plus accuracy के साथ इस entrance examination को solve करना होता है. The question style and syllabus focus, what they test. MHCT, again, legal aptitude, English, GK current affairs, basic quantitative logic, same as CLAT. Style is straightforward MCQ and language options benefit local aspirants. अब इसमें सबसे बड़ा benefit क्या है? बहुत straightforward questions आपसे पूछे जाते हैं. That means the direct questions. MHCT में आपसे पूछे जाते हैं direct questions. इसमें नहीं आ रहे हैं आपके कोई भी passage based questions. प्लस देर इज अ बेनिफिट ऑफ द लैंग्वेज दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मराठी लैंग्वेज का आपका बेनिफिट है. जो लैंग्वेज आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो आप उसको आप जल्दी पढ़ते भी हो, एंड दैट इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस वन पर्टिकुलर पेपर because of the reason that there are direct questions and there is a language benefit as well, right? So then if we talk about CLAT, बहुत हैवी रीडिंग बेस्ड पेपर है, पैसेज ड्रिवन है. इसमें आपको स्पीड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होगी. अगर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में हो, यू विल हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ताकि आप 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ. एंड इट्स नॉट जस्ट दैट यू विल गेट 1 minute per question, because you have to read the passage first and then solve the follow-up 5-6 questions, right? So that is where ALET and CLAT are bit on the difficult side, because ALET में questions ज़्यादा हैं, time कम है, and CLAT में आपके पास time बराबर है लेकिन क्वेश्चंस बहुत हैवी रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट? सो एलेट में आपके साथ ये होता है कि आपको 150 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में सॉल्व करना है. एंड द प्रॉब्लम लाइज इज कि क्योंकि यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं तो तीनों सेक्शंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं. लॉजिकल रीजनिंग में, एनालिटिकल रीजनिंग के आपको जब डिराइव करने होते हैं पूरे वेन डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, इट गेट्स बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड टू कंप्लीट द पेपर. बट इफ ओनली फॉर यू डू, यहाँ पर इंग्लिश भी थोड़ी सी हाई लेवल की पूछी जाती है इन द एलेट एग्जामिनेशन. सो दैट इज वाई इफ यू आर समबडी who is from Maharashtra and they have this benefit of targeting MHCT examination, usually that Maharashtrian candidates also do. But if you are somebody who needs an NLU tag, then they must also focus on the CLAT and ALET
एग्जामिनेशन. स्लैट शॉर्ट हाई डेंसिटी रीजनिंग, बहुत ईजी पेपर होता है स्लैट का. आई हैव पर्सनली गिवन दिस एग्जामिनेशन. वेरी वेरी ईजी क्वेश्चंस, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, बिकॉज देन दे कंडक्ट अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड, सो दे टेस्ट योर पर्सनैलिटी. दे डू नॉट गिव यू एडमिशन जस्ट solely based on the written entrance examination that you have given. CULLE typical law entrance mixed institutional rounds. आपको PI again personality based test है, personality आपकी जज की जाती है. And if we talk about the LNET examination, again the critical reading plus essay, they check your objectivity कि आप कितने beautiful तरीके से एक essay लिख के आप उनको present कर सकते हो, that if you are eligible to get in the admission into that one particular university or not, right? The selection process and extra stages. अब कौन से examinations है जिसमें थोड़े से extra stages involved हैं, वो भी मैं आपको bifurcate करके बता देती हूँ. MHCT में सिर्फ आपको एक स्कोर देना है, आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, फिर आपका एक कट ऑफ रिलीज होगी, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगी, एंड देन देयर इज अ सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, नो एक्स्ट्रा स्टेज. देन क्लैट में अगेन देयर इज नो GDPI, नथिंग इज देयर. यू हैव टू जस्ट गिव द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, द कट ऑफ विल बी रिलीज फॉर डिफरेंट NLUs, एंड इफ यू fall within the cutoff, you get admission into that particular university after your counseling process, after all your documents have been verified. Again, ALET single exam, NLU Delhi just one entrance examination, cutoff will be released. If you fall into it, you get it the admission after the counseling process. CULLE में अब आपके आते हैं बहुत सारे different stages, exam, micro presentation, interview, multi-stage selection होता है, and that is where you have to focus on your personality, on you, how to you present your ideas, how you speak in front of the panel. That is what totally depends upon the CULLE examination, and that is where if you're confident that yes, I am ready to face the interview, I know how to present my thoughts and values, that is where you can target CULLE examination. And Christ University is a decent university that every student can target. They have the good faculties and the placement opportunities as well. Now, difficulty in cutoffs, as I mentioned, NLU and ALET, that means CLAT and ALET, they are very, very competitive because the targeting number of students are very much more than the MHCT cutoffs, because MHCT में जो students होते हैं वो सिर्फ महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स टारगेट करते हैं. तो महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स के अंदर अंदर अगर कंपटीशन देखा जाए तो वो MHCT में कंपटीशन ज़्यादा होता है, बट क्लैट और एलेट के लिए वर्ल्ड वाइड, दैट मीन्स कंट्री वाइड जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज एवरी अदर स्टूडेंट इज टारगेटिंग क्लैट एंड एलेट एग्जामिनेशन. क्लैट में देर आर ऑलमोस्ट 70,000 to 80,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर अटेम्प्टिंग क्लैट, एंड वेराज इन एलेट देर आर ऑलमोस्ट 20,000 students who are attempting ALET examination. Seats in CLAT is just 3,500 seats, around 3,500, and in ALET there are just 120 to 150 seats. So can you see the competition? Just like almost what, 20% of seats? And here not even 20% of the seats are available in the CLAT and ALET examination, and that is why the difficulty level of these examinations is comparatively higher than this one particular examination of MHCT. Now, if you are somebody who is targeting MHCT only, then what will be your strategy? If you are targeting CLAT, ALET along with MHCT, what will be your strategy? ये देखते हैं. If you're targeting only MHCT, practice speed drills, stimulate 120 question in 120 minutes. आपके 120 questions 120 minutes में complete होने ही चाहिए, and work on accuracy with no negative marking mindset. प्रायोरिटाइज स्टेट सिलेबस टॉपिक्स, आपको देखना है कि पैटर्न चेक करना है कि MHCT में महाराष्ट्र में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे एक पैटर्न डिराइव कर सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम का. अगर आप क्लैट और एलेट भी टारगेट कर रहे हो MHCT के साथ, तो आप हैवी रीडिंग बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों के माइंडसेट से तैयारी अपनी करोगे, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द डायरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल एज द हेवी रीडिंग बेस्ड पेपर्स. वर्क ऑन करंट अफेयर्स aggressively for CLAT and ALET, which will automatically help you in the MHCT examination also, right? If applying to institutes like Christ Symbiosis, prepare beyond MCQs, candidacy rounds, presentations, interviews, need communication practice and personality prep, as I already mentioned. If aiming abroad, LNAT or LSAT, then add critical reasoning and timed essay practice, and you should be a person who knows that how to write a good essay, and then only you can get into the university called as OP Jindal Global University. So quick checklist, which exam should you prioritize? Want government state law college in Maharashtra? MHCT first. Want NLU's national recognition? CLAT first. Want specifically NLU Delhi? ALET only.
ALET only. Prefer Symbiosis Christ, SLAT, CULLE respectively, and thinking UK abroad, then you should also be targeting LNAT, LSAT India as applicable, right? So what will be my final advice? Don't prepare for law entrance जेनरिकली. आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हाँ ये लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसको तो मैं हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर लेता हूँ. आप अपने दिमाग में पहले चेक लिस्ट बनाओ कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते हो, एंड देन ओनली प्रिपेयर फॉर सच लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. मॉक वाइजली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा टारगेट है तो आप उसी के अकॉर्डिंग मॉक्स दो. अगर आपकी ये जिद है कि मुझे NLU में ही जाना है तो आप क्लैट स्पेसिफिक मॉक्स दो. अगर आपको पता है कि मेरे को नॉर्थ इंडिया से बाहर NLU दिल्ली के बाहर कहीं नहीं जाना तो आप ALET के मॉक्स दो और ALET के लिए स्पेसिफिकली टारगेट करो. एंड इफ यू आर समबडी हु इज टारगेटिंग महाराष्ट्र टू सेटल इनटू महाराष्ट्र एंड यू नो दैट you want to study for 5 years for there, then you can target MHCT. Check official brochures each year. हर साल brochures में कभी कभी कुछ changes आ जाते हैं, तो official notifications को हमेशा check करते रहो so that you do not face any problem while preparing for these entrance examinations. So this was my thing where I wanted to tell you that how MHCT differs from other law entrance examinations. The main difference is that only that 90% of the quota is reserved for the Maharashtrian candidates, and that is why this entrance examination becomes a cakewalk for such students. Now, if you're somebody who also wants to target this one particular examination and have any doubts, do let us know in the comment section. Till then, all the very best for your preparation. I'll see you in the next one. But इफ़ यू आर समबडी जिसने अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू की है और बहुत ज़्यादा डिले लग रहा है प्रिपरेशन में कि कैसे तैयारी होगी, तो iConta ने लॉन्च कर दिया है अपना क्रैश कोर्स. सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी www.iconta.in/clat, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर लेना. वी विल बी डायरेक्टली हेल्पिंग यू आउट. व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ पे सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं. क्लैट, ALET, SLAT, MHCT, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम डायरेक्टली भेजते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. द लिंक फॉर विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Till then, all the very best, and do not miss out the opportunity. Just 2 months left for every entrance examination to happen.